امجد مانتے ہیں، بلکہ جتنے بھی سامی مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے ابراہم کو جد امجد مانتے ہیں، تو وہ بڑی خوبصورت کو آیت ہمیں یہ بتاتی ہے، یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ ہاں تم ابراہم کو اپنا باپ مانتے ہو، تم ابراہم میں سے پیدا ہوئے، تم ابراہم کی قوم سے ہو، لیکن اس سے پہلے کہ ابراہم پیدا ہوتا میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح جب زمین پر آئے تو انہوں نے اپنی تمام آسمانی آسائشوں کو، تمام جلال کو ایک طرف رکھا اور انہوں نے جسم لیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ جسم لیا۔ یہ اس کے لیے حوالہ جات تو بہت سے ہیں، لیکن ہم اس کو دیکھیں گے فلپیوں 2:7۔ پلیز سب نکالیے گا، فلپیوں 2:7۔ کوئی بھی پڑھتے ہیں؟ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب اس کی 7ویں آیت۔ بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ بلکہ اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ سب بولیں گے کیا کر دیا؟ اس کے اندر کچھ تھا جو اس نے خالی کیا۔ آمین۔ جس طرح سے گلاس کے اندر پانی ہو تو اس کو آپ الٹ دیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خالی ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر اختیار تھا، اس کے اندر تمام خدائی صفات تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور کن کے مشابہ ہو گیا؟ انسان کے مشابہ ہو گیا۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں اس بات پر کہ آج ہم اپنے آپ پر ضبط نہیں کر پاتے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ میں کر ہی نہیں سکتا، یا میں انسان ہوں، مجھے بڑا غصہ آ گیا۔ خداوند یسوع مسیح خدا تھے جب ان کو مارا جا رہا تھا، تھے؟ یس، وہ کامل خدا اور کامل انسان تھے۔ اور میں آپ کو اس بات کے لیے انکریج کرنا چاہوں گی کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ جہاں جہاں پر وہ اپنے آپ کو خدا ثابت کر سکتے تھے اپنے لیے، انہوں نے اپنے لیے خدا ثابت نہیں کیا۔ جب خداوند یسوع مسیح بیابان میں آزمائے گئے تو کیا وہاں پہ وہ پتھروں کو روٹیاں بنا سکتے تھے؟ کہ مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں تھا۔ پہلے تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے آ کر کہا کہ تو ان پتھروں کو کہہ تو وہ تیرے لیے روٹیاں بن جائیں گی، اس سے پہلے بھی یسوع ابلیس سے پہلے بھی اگر وہ چاہتے تو وہ پتھروں کو روٹیاں بنا سکتے تھے، لیکن وہ بھوکے رہے۔ انہوں نے بھوک کو برداشت کیا، اپنے لیے خدائی صفات استعمال نہیں کی۔ لیکن جب لوگ بھوکے ہوتے ہیں تو کیا وہ کھانا کھلاتے ہیں؟ کھلاتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو؟ 5000 کو، 7000 کو، جو کاؤنٹ کریں عورتیں اور بچے ڈال کے 20-25 ہزار لوگ بنتے ہیں۔ جی 35 بھی بن جاتے ہیں، کاؤنٹنگ کے حساب سے ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں تو اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا، لیکن وہ خود بھوکے رہے، اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ کیوں؟ پنک دوپٹے والی باجی اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اپنے لیے انہوں نے خدائی صفات استعمال نہیں کی۔ جب خداوند یسوع مسیح کو ماننا چاہتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح کی مخالفتیں ہو رہی ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کہتے ہیں کہ استاد ہم چاہتے ہیں کہ تو آسمان سے اپنے لیے 12 تمن فرشتوں کے منگوا لیں۔ کتنے تمن؟ سب بولیں گے کتنے تمن؟ تمن کو اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں تو وہ لشکر ہے، یعنی کہ 12 لشکر فرشتوں کے منگوا لے۔ اور جب لشکر کی بات ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بدرو گرفتہ شخص تھا جس کو پوچھا گیا کہ تیرا نام کیا، تو اس نے کہا کہ میرے اندر لشکر ہے۔ میرے اندر کیا ہے؟ لشکر ہے۔ لشکر کے لیے وہاں جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ لیگیون ہے۔ لیگیون کا مطلب ہے 6000 سپاہیوں کا دستہ۔ کتنے سپاہی؟ 6000۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی جو بدروہیں تھی وہ 6000 تھی۔ کتنے ہزار؟ 6000۔ لیگیون ہے اس کے اندر، تمن ہے اس کے اندر، لشکر ہے اس کے اندر۔
तो शागिर्द यीशु मसीह से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तो अपने लिए 12 तुम्मन 12 लश्कर फरिश्तों के मंगवा ले। क्या अगर यीशु चाहते हैं तो फरिश्ते आ सकते थे? आ सकते थे। अगर यीशु कहते कि फरिश्ते आ जाए तो फरिश्तों ने आ जाना था। और फरिश्ते तो वो हैं जो एक रात में 85 हजार लोगों को मार देता है, एक फरिश्ता। ऐसा ही है। कितने फरिश्ते? और अगर आप 12 को 6 के साथ ज़रब दे दें तो 72,000 फरिश्तों ने आना था। कितने हजार? तो क्या कोई जीरो बचता? क्या कोई इंसान बचता? यीशु मसीह ने अपने आप को बचाने के लिए या अपना जलाल जाहिर करने के लिए कोई अपनी खुदाई सिफ्त इस्तेमाल नहीं की। लेकिन जब इंसानों की बात है, लेकिन जब शागिर्दों को बचाने की बात है तो वह हवा को भी थमा देता है और पानी को भी थमा देता है, जो कि कोई इंसान नहीं कर सकता। कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले बताया कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तूफानी हवाएं खुदा के हुक्म की तामील करती है। जब वो कहता है तो वो चलती हैं, जब वो कहता है तो वो रुक जाती हैं। कलाम में ये भी लिखा है कि खुदावन जो है वो समंदरों की तगयानी पर हुक्मरानी करता है। जब वो चाहता है तो समंदर जोश में आता है, जब वो चाहता है तो फिर वो अमन में हो जाता है। तो ये वो यीशु है जो आसमान पर तमाम इख्तियारात को छोड़ आता है, जो जमीन पर भी है तो अपने लिए कोई इंसान होते हुए कोई अपने खुदाई इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जहां पर इंसानों की बात होती है वो अपनी खुदाई सफात का भी इस्तेमाल कर लेता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जलाल को तरक किया, आसमान को छोड़ा, वो जो सारी चीजों से पहले था। कितनी चीजों से? सारी चीजें किसके वसीले से बनी? खुदावंद यीशु मसीह की। और सारी चीजें कायम भी किस में रहती हैं? लेकिन फिर भी उसने इंसान की सूरत इख्तियार की। वह कलमा जो खुदा का था, जो खुद खुदा था, वो मुजस्सम हो गया हम इंसानों के लिए। किन के लिए? हम इंसानों के लिए। वो जो कलाम था, वो जो कलाम खुद खुदा था, वो हमारे लिए मुजस्सम हो गया। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज फिर भी जो क्रिसमस के होते हैं डे होता है या 24 की रात होती है, उसमें खुदा को जलाल नहीं दिया जाता है। आप भी क्रिसमस बैठे हैं, खुदा को जलाल नहीं दिया जाता। सिर्फ ये मान लिया जाता कि हम केक काटेंगे। इवन मैं जिस इलाके से बिलोंग करती हूँ, शादरा से, वो पूरा क्रिश्चियन इलाका है, वहां पे शराबी भी केक काट रहे होते हैं। वो भी कह रहे होते हैं हैप्पी बर्थडे जीसस, सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उसकी मना रहे हैं जो आसमान को छोड़कर जमीन पर आया, जो जलाल को छोड़कर जमीन पर आया, ताकि हम निजात पाए, ताकि हम बच जाएं, ताकि हम खुदा के जलाल का हिस्सा हो जाएं। वो इसलिए दुनिया में आ गया ताकि हम मसीह के हो जाएं, और जब हम आसमान पर जाएं तो हम अपनी आंखों से उस जलाल को दे सकें जो दुनिया की पैदाइश से पेशतर यीशु रखता था। और मैं अक्सर इस बात को कहा करती हूँ कि ये मत सोचे कि हम दुनिया में हैं, हम जिंदा हैं, खुदावंद का शुक्र है। हाँ, इस बात के लिए शुक्र है। खुदा से इस बात के लिए दुआ किया करें कि खुदा जमीन पर हमारी आंखें बंद हों और जब आसमान पर खुले तो हमारी आंखों के सामने यीशु हो। ये दुआ किया करें कि जब जमीन पर हमारी आंखें बंद होती हैं तो आसमान पर हम उस जलाल को देखें जो यीशु दुनिया में आने से पहले रखता था, कि वो भी तख्त पर बैठा है, फरिश्ते उसकी भी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके हजूर में भी कदूस कदूस पुकारा जा रहा है। वो भी कहता है तो हो जाता है। सब कुछ हम उस जलाल को देख सके। हम कलाम मुकद्दस में उस यीशु को देखते हैं जो चन्नी में पैदा हुआ, जिसको मारा भी गया। और बड़े दुख के साथ हम ईस्टर के प्रोग्राम पे इस बात को शेयर करते हैं कि जब यीशु मसीह के मुंह पर मारा जाता है तो यीशु मसीह कहते हैं तो मुझे मारता क्यों है? ऐसे ही नहीं लिखा होगा, कहा तुम मारता क्यों है? कैसे दुख की बात है कि खालिक मखलूक से मारे और उसको कुछ कहे बिना बस यही कहे कि तुम मुझे मारता क्यों है?
कितने दुख की बात है। किस लिए? हमारे लिए। क्या आप अपने ऊपर हाथ रख सकते हैं? मेरे लिए। कभी आप जो देखते हैं ना मूवी खुदावंद यीशु मसीह के दुखों की, क्या नाम है उसका? पैशन ऑफ क्राइस्ट। अगर आप जब यीशु मसीह को कोड़े पढ़ रहे होते हैं, उसके ऊपर अपना मुंह लगा लें तो बड़ा दुख होता है देख के कि ये सजा किसकी थी? हमारी थी। ये सजा मेरी थी। ये सजा किसकी थी? मेरी थी। लेकिन वो उसने बर्दाश्त की हमारी निजात के लिए, हमारे कफारे के लिए, इसलिए कि हम खुदा के जलाल में दाखिल हो उसने अपने जलाल को छोड़ दिया। और बड़ी खूबसूरत बात भाई ने मेरा तारुफ करवाते हुए की कि एक दुनिया में जो निजात आई वो खुदावंद यीशु मसीह ने औरत से जन्म लिया। ऐसा क्या? तो मैं जाते जाते ये बात जरूर यहाँ पे बयान करना चाहूंगी, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात। आज भी लोग जो हैं वो औरतों के दुनिया में गुनाह का कसूरवार ठहराते हैं। ऐसा ही है कि नहीं है? आप यहाँ नहीं करते? करते हैं हर जगह पे। ये जी ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे ही है। अब इस बात को जरूर कहा जाता है कि जी औरत अगर फल ना खिलाती आदम को तो वो कभी भी फल ना खाता। इस औरत को, इस बात को क्यों नहीं याद किया जाता कि निजात हिंदा भी औरत से पैदा हो। अगर खुदा चाहते तो क्या यीशु मसीह को डायरेक्ट आसमान से जमीन पर भेज सकते थे? कितने मुत्तफिक है मेरे साथ? भेज सकते थे? भेज सकते थे। ऐसा हो सकता था कि डायरेक्ट आसमान से जमीन पर आते और फिर तो यीशु को कोड़े भी ना खाने पड़ते, फिर यीशु मसीह को जमीन पर इंसान भी ना बनना पड़ता। लोगों ने खुद बखुद ही मान ले आना था। ओ हमने देखा कोई आसमान से जमीन पर आया। लेकिन मरियम की पस्तहाली को, औरत की पस्तहाली को दूर करने के लिए मरियम का इंतखाब किया। आज उस बात को याद रखा जाता है कि औरत के वसीला से गुनाह। ये तो बड़ा लंबा टॉपिक है और उस पर तो मैं 3-3 घंटे भी बोल लेती हूँ, लेकिन इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मरियम ने जब गीत गाया, जब मरियम ने ये अल्फाज खुदा के हुजूर में अदा किए तो उसने कहा मेरी पस्तहाली पर नजर और आइंदा से हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। चूंकि खुदा जानता था कि औरत को ही हमेशा कसूरवार, औरत का गुनाह था भी, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसी की क्लियरेंस के लिए, उसी की पस्तहाली को दूर करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए। और मैं समझती हूँ और शायद यही एक वजह है कि औरतें यीशु से बहुत प्यार करती हैं, कब्र में भी चली जाती है। जिंदा होने के बाद पहली खुशखबरी औरत ने दी। कीज ठोकने वालों में कोई औरत नहीं थी, बल्कि उसने कहा कि ना इसके बारे में बहुत कुछ है। तो इस क्रिसमस के मौके पर, इस बड़े दिन के मौके पर, इस खुदावंद यीशु मसीह के जन्म दिन के मौके पर इस खुशी के साथ इसको इस दफा मनाइएगा कि दुनिया में वो आया जो आसमान पर सब इब्तिदा से था, कदीमुल अयाम से था, ज़माने साबिक से था, सबसे पहले था वो। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदा से कहें कि खुदावंद हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में ना भेजते तो हम कभी भी मसीह को ना पा सकते थे। आइए खुदावंद का शुक्रिया अदा करें, खुदावंद का शुक्र अदा करें कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को भेजा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, खुली आंखों से आप इंसानों को देखते हैं, बंद आंखों से आप यीशु को देख सकते हैं। खुली आंखों से हम इंसानों को देखते हैं, बंद आंखों से आप यीशु को देख सकते हैं। और आंखें बंद करने का मतलब आंखें बंद करना ही होता है। दुनिया में हर जगह इसका मतलब यही है। आइए खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। वो जो जलाली था, वो जो खुदा था, वो हमारे लिए इंसान बन गया। वो जो कदीमुल अयाम से है
जो दुनिया की पैदाइश से पेशतर खुदा के साथ जलाली था। आइए खुदावन से कहें कि खुदावन हमें फजल बख्श दे कि हम उस जलाल को देख सकें। खुदावन से कहें खुदावन इस क्रिसमस के मौके पर हमें फजल बख्शिए कि हम निजात दहिंदा को अपने दिल से कबूल कर सकें। अगर आज तक खुदावन ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, आज तक अपनी जिंदगी उसे नहीं दी, तो खुदावन से कहें कि खुदावन मैं अपनी जिंदगी आपको देना चाहता हूँ। आप जो खुदा थे लेकिन आप इंसानों के हाथों में पड़ गए। आप जो खुदा थे आपने इंसान होने की तमाम हालतों को बर्दाश्त किया। शुक्रिया अदा करें। अगर हम इस कलाम को हम दिल से कबूल कर लें तो हमारे पास लफ्ज नहीं है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें। लेकिन आइए खुदा उनका शुक्र करें, वो जो अपनी मुहाफ़ज़त के लिए फरिश्तों को तयन कर सकता था लेकिन उसने नहीं बुलाया। खुदा उनका शुक्र करें कि उसने हमें आज अपने हजूर में सलामती अता की, इस कलाम को सुनने का फजल बख्शा ताकि इस कलाम के वसीला से हम बरकत पा सकें, हम यीशु को पहचान सकें कि वो जमीन पर आने से पहले क्या था।